Hello everyone. Now again welcome in video lecture class. Today I am going to talk about the topic that is National Policy for Person with Disability Act 2006. विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांगता दैट मीन्स राष्ट्रीय नीति 2006। इसके पूर्व के वीडियो में इससे संबंधित जिसके मौलिक पक्ष हैं 10 पॉइंट, उसमें से 8 पॉइंट की चर्चा मैं विस्तार से कर चुका हूँ। आज मैं उसके जो बचे हुए 4 पॉइंट हैं दैट इज द रिमेनिंग 4 पॉइंट रिलेटेड टू नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन ऑफ डिजेबिलिटी एक्ट 2006 उसकी सिर्फ बात करूँगा। अगर इस पॉइंट की बात की जाए तो जो पॉइंट नंबर 9 है वो चीज़ें स्पष्ट इंडिकेट करता है कि कलेक्शन ऑफ रेगुलर इंफॉर्मेशन that means how you have to collect the information related to the disabled person and prepare a data. Next one is most important and vital, that is research, that is in the area of research, that is especially for higher education, how you have to solve the problem of the research. Now next one is most important also, and the recreation, games, sports, and the last one is amendment, यानी कहने का तात्पर्य है सूचनाओं का संग्रह करना, उससे संबंधित रिसर्च करना, यानी खोज। जब तक उस पर शोध नहीं होगा तब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। साथ ही उनके रिक्रिएशन यानी खेलकूद का एक आधार हो, कैसे जो है वो खेलकूद से ज़्यादा चीज़ों में इन्हें इंगेज किया जाए, इन्वॉल्व किया जाए, जिससे कि अधिक से अधिक मात्रा में जो विकलांग व्यक्ति हैं उससे जुड़ें और सांस्कृतिक आधार पर जुड़कर अपने जीवन को जो है वो और मजबूत करें। साथ ही विकलांगता से निपटने के लिए क्या अधिनियम हो, क्या सिस्टम बने, इस पर भी जो है जानने समझने की आवश्यकता है। अब मैं इन सभी चीज़ों को विस्तार से बताने जा रहा हूँ। Now again welcome to video lecture class B.Ed semester 4 paper 12 creating an inclusive school. Now as per the previous video, first today the remaining 4 point first I will describe, and after that in Hindi version I will describe. Now National Policy for Person with Disability Act 2006, point number 9, collection of regular information on person with disabilities. In this related the particular point, it indicates that there is a need for regular collection and analysis of the data related to socio-economic condition of the person with disability. The socio-economic condition of person with disabilities on regular basis since last 10 years, that is initiated with 1981. The fact is, number 1, the National Sample Survey Organization will have to collect the information on persons with disability at least once in 5 years. The differences in the definition adopted by the two agencies will be recorded. Now second, a comprehensive website for person with disability will be created under the Ministry of Social Justice and Empowerment. Organization both in public and private sector will be encouraged to make their websites. Now point number 10, research. It is also most important and vital for improving the quality of life of person with disabilities. Research will be supported on their socio-economic and cultural context, cause of disabilities, early childhood education and methodology, development of user-friendly aids, and all matters connected with the disabilities which will be significantly alter the quality of their life and
civil society. Wherever persons with disabilities are subjected to research intervention, their or their family members or categories or caregiver consent is mandatory for the process of research. Now, next one is sports, recreation and cultural life. The contribution of sports for its therapeutic and community spirit is undeniable, because persons with disabilities have right to access sports, recreation and cultural facilities. The government will take necessary steps to provide them opportunity for participation in various sports, recreation and cultural activities. So it is most important for the disabled people. Now, number 12, amendment to existing act dealing with person with disabilities. 10 years have passed since the Person with Disabilities Equal Opportunity Protection of Right and Full Participation Act 1995 came into operation. Full stop. With the experience gained in the implementation of the act and development in the disability sector, certain amendments to the act have been necessary. These amendments will be carried out in consultation with the stakeholders. RCI, Rehabilitation Council of India and National Trust Acts will also be reviewed, and if necessary required amendments would be made. Now, अब मैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट कर दूं। विकलांग व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय नीति 2006, इसके अंतर्गत विकलांग व्यक्ति और उसके मूलभूत पहलुओं के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 के पूर्व में 8 जो फैक्ट हैं इसके पॉइंट, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। अभी मैं 9, 10 और 11, 12 की बात करूं, अगर मैं 9 नंबर पॉइंट की बात करूं तो विकलांग व्यक्तियों से जुड़ी जानकारी को नियमित संग्रह करना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है उस तरह के व्यक्तियों के उत्थान के लिए और खासकर सामाजिक उत्थान के लिए। विकलांग व्यक्तियों की सामाजिक दशा से जुड़े आंकड़ों का नियमित संग्रह, प्रकाशन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार 1981 से नियमित रूप से हर 10 साल में एक बार विकलांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक दशा से जुड़े आंकड़ों का नियमित संग्रह, प्रकाशन एवं विश्लेषण किया जाता है। जनगणना 2001 में भी ये काम एक के अनुसार भी विकलांग व्यक्तियों को सूचना को एकत्र किया गया था। अगर इसकी विशेषकर किन क्षेत्र में अगर कैसे इसको काम करने की आवश्यकता है, अगर उसकी बात करूं तो सर्वप्रथम एक व्यापक वेबसाइट का निर्माण, नंबर 1। इसके अंतर्गत सामाजिक न्याय तथा आधिकारिक मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए एक व्यापक वेबसाइट का निर्माण किया जाए, जिससे कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से जुड़े संगठनों ऐसे वेबसाइट बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाए। और लास्ट में जिसे दृष्टिहीन हो या व्यक्ति जिनको कि न दिखाई पड़ रहा, तकनीक के जरिए वो पढ़ सकें और अपने डाटा या संग्रह से आधार पर वो जुड़ सकें। दूसरी मैं पॉइंट नंबर अगर 10 की बात करूं तो अनुसंधान में विकलांगता के शिकार व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने के लिए उनके सामाजिक आर्थिक दशा तथा सांस्कृतिक संदर्भ, विकलांगता के कारण आरंभिक बाल शिक्षा विधि, साथ ही यंत्र एवं उपकरणों के आधार पर विकलांगता से जुड़े सभी मामलों पर अनुसंधान कार्य किए जाएं, जो कि उनकी जीवन की कुशलता को या उनके जीवन को बदलाव करने में सहायक हो सकता है। जहां कहीं भी विकलांगता के शिकार व्यक्तियों के ऊपर अनुसंधान कार्य या चिकित्सा कार्य संपन्न किए जाएं, वहां उनके माता पिता या अभिभावक से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अब मैं पॉइंट नंबर 11 की बात करूं, खेल कूद, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक जीवन की, तो उपचारात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत सामुदायिक भावना के साथ साथ खेल कूद की भूमिका भी अहम होती है। विकलांग व्यक्तियों को खेलकूद, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक सुविधाओं का लाभ उठाने का पूरा अधिकार है। इसलिए सरकार उन्हें विभिन्न खेलकूदों, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करने के साथ साथ आवश्यक कदम भी उठाती है। अब मैं 12 नंबर की पॉइंट की बात करूँ तो विकलांगता से निपटने वाले मौजूदा
मौजूदा अधिनियमों में सुधार किया जाए। कैसे? तो विकलांगता के अंतर्गत समान अवसर अधिकारों की सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी एक्ट 1995 के अनुसार 95 में ये बातें स्पष्ट तौर पर किए गए थे, परंतु इस कानून को लागू करने और विकलांगता के क्षेत्र में हुई प्रगति से मिले अनुभव से इस अधिनियम में कुछ संशोधन की आवश्यकता है। इससे जुड़े उपक्रमों के परामर्श के बाद सुधार संपन्न किए जाएं और साथ ही राष्ट्रीय ट्रस्ट के द्वारा इसका समीक्षा की जाए और आवश्यकता पड़ने पर उसमें संशोधन भी किया जाए, यह आवश्यक होता है। इस प्रकार से मैंने इन सभी चीज़ों को स्पष्ट किया। आगे वाली चीज़ों के बारे में मैं आगे आपको बाद में बताऊंगा। ऊपर वर्णित अभी जो मैं 10 पॉइंट की चर्चा की है, जो 4 आज के इसके पहले वाक्य में चर्चा कर चुका हूँ, तो ये जो 12 पॉइंट है, ये सभी पॉइंट निश्चित ही जो विकलांगता के आधार पर जो एक्ट 2006 के जो नीति नियम बनी हुई है, जिसमें कि 10 सलाह दिए गए हैं, ये निश्चित ही विकलांग जो व्यक्ति जो जुड़े हुए हैं या विकलांगता जिनकी समस्या है, उनके उत्थान में ये मददगार होगी। आवश्यकता सिर्फ इस चीज़ की है कि कैसे इसे फ्रूटफुल, दैट मीन्स फलदायी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, दैट मीन्स on the basis of awareness of our society and also on the basis of the awareness of the people। जब तक हमारा समाज और जब तक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अवेयर, जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये जो 10 हमारे जो फ्रूटफुल या जो एक अच्छे जो एक भारत सरकार द्वारा जो सलाह दिया गया है एक्ट के नियम के तहत जो इसको संशोधन करके लोकसभा में या इसे पारित किया गया है, ये सफल नहीं हो सकता है। तो आवश्यकता है कि कैसे इसे सिस्टमेटिक और व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाए और जन सहयोग की भावना के आधार पर इसे लागू किया जा सकता है। अब कहाँ पर हस्तक्षेप की आवश्यकता है, उसके संबंध में अगले क्लास में मैं बात करूंगा। साथ ही इसके बाद एक और नया टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान, उसके बारे में भी विस्तार से बात करूंगा। मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ। अंत में अगर अभी तक जो कोई ऐसे हैं स्टूडेंट अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उन्हें शायद वीडियो बाद में मिलता होगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे ही अपलोड होगा इमीडिएट आपको उपलब्ध होगा। तो आगे की वीडियो के लिए और आगे के क्लास के लिए मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।